If you had a doubt regarding previous lectures, so can ask your doubts and then I will start the new topic. One by one you can ask the question if you have any doubt regarding previous lectures, or we will move to the new topic. Have doubt? Dr. Abhay, Dr. Ankita, Dr. Nidhi, Dr. Vani. Okay. So today's topic is endometriosis. What is endometriosis? Presence of functioning endometrium in the site other than uterine mucosa is called endometriosis. This ectopic endometrial tissue, when found in myometrium, it is called adenomyosis. As I told you, this is uterus, this is endometrial cavity. Okay. Now, there is a endometrial glands are lining inside this endometrial cavity. Normally, it is its normal site. But when this endometrial site develops outside the normal site, it is called endometriosis. If it grows to the fallopian tube, ovary, or may sometimes it reaches into peritoneal area also. So this is called endometriosis. When this endometrial tissue travel into myometrium, this is myometrial portion. So it is called adenomyosis. So myometrium, if invade, remains in the in up to the uterus and invades in the myometrium, it is called adenomyosis. Or if it spread to the fallopian tube, ovary, peritoneum, sometimes this ectopic tissue can grow into the scar. एपिजोटोमी scar और CSK scar पे भी endometriosis हो सकता है, very rarely. So the commonest site of endometriosis are ovaries, pelvic peritoneum, pouch of Douglas, and uterosacral ligament. What is pouch of Douglas? Yeah. See, this is a uterus. Okay. This is a bladder. And this is a rectum. This is rectum, this is uterus, and this is bladder. Now, there is a peritoneal covering is like this. Okay. So, this area is called POD. Understood what do you mean by POD? It is called pouch of Douglas. So, the peritoneal fold that formed between uterus and rectum and the space between that are termed as pouch of Douglas. So, most common site of endometriosis are ovaries, pelvic peritoneum, pouch of Douglas, and uterosacral ligament. Where is uterosacral ligament? That we will going to learn in prolapse part. और अभी मैं बताती हूँ, तो ये यूट्रस है, उसके पीछे ऐसे रेक्टम के साथ यूट्रस और रेक्टम के बीच में, यूट्रस के पीछे जो लिगामेंट होते हैं, सपोज लेट मी ड्रॉ इन द बैक साइड ऑफ यूट्रस. आई एम ड्रॉइंग द बैक साइड ऑफ यूट्रस. This is back side of uterus. So
this type of ligaments are there on the back side. This is V shaped. These are called uterosacral ligament. So the most common sites of endometriosis are ovaries, pelvic peritoneum, pouch of Douglas and uterosacral ligament. Pathogenesis, how the endometriosis occur. First, it is idiopathic. We don't know in which cases endometriosis will happen. But the certain scientists have found certain theories. First theory is retrograde menstruation. So they believe that the every month hormonal changes occurs, that we already discussed. Every month there is a balanced hormonal secretion of FSH, LH, TSH and prolactin, and hormonal changes happens in the ovaries. So every month when due to hormonal changes bleeding occurs, certain bleeding came give rise to the backflow. सो वो अपवर्ड डायरेक्शन में बैकफ्लो होता है. सो वो बैकफ्लो होके उसमें जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती है, टिश्यू जो शेड हुई होती है, वो अगर वहां पे रुक जाए तो इट विल गिव राइज टू द एक्टोपिक डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू. लाइक suppose this is this is uterus, this is endometrial cavity. Now what happens, the blood coming at every month under hormonal influence and due to retrograde theory this blood can backflow. So from endometrial cavity it will backflow into myometrium, it can come into the fallopian tube, it come into the ovary, it from ovary it can come into the peritoneum area and everywhere. Thus by the retrograde menstruation endometriosis can develop. So there is a due to constant backflow, there is a chronic irritation of pelvic peritoneum occur, giving rise to the endometriosis. Third, there may be the rarely direct implantation like surgical scar. Sometimes the method we don't know, but sometimes there may be the direct implantation of these endometrial glands onto the scar, like caesarean scar, episiotomy scar, and they give rise to the endometriosis. And fourth is pollution in the air. So certain scientists has found these theories for the development of the endometriosis. Exactly we don't know why this happens, but the most common theory found in endometriosis is retrograde menstruation. So due to backflow of the menstruation, there may be the that endometrial tissue settle down and undergo the changes. So what happens when, if the endometrial this gland develop at ectopic site, then what happens? Every month hormonal secretion occurs and new menstrual cycle begins. So there is also changes happens at that endometrial glands also. So if the patient, suppose I am giving you example, if the patient having
स्कार एंडोमेट्रियोसिस, सपोज एपिजोटोमी स्कार या सिजेरियन स्कार पे एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, इट इज वेरी रेयर कंडीशन, नॉट कॉमनली सीन, तो उसको हर महीने पे मेंसेस के टाइम पे वहां पे दर्द करेगा. अगर ओवर या फेलोपियन ट्यूब्स में एंडोमेट्रियोसिस हुआ है तो एवरी एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन पेशेंट को सिवियर डिसमेनोरिया होगा. So the ectopic tissue that are deposited also undergo some hormonal changes. So this is that exactly explained. What happens? The endometrial gland at ectopic site undergoes the changes of ovarian hormone at every beginning of the cycle. There is a periodic shedding of the blood. जहाँ पे जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है ना, उसमें से भी पीरियोडिक शेडिंग ऑफ ब्लड होता है, पर वो अंदर का अंदर रहता है. एंड दैट रिमेन एनसिस्टेड एंड प्रोड्यूस द मास. कॉन्स्टेंट इरिटेशन leads to the adhesion. So this is how endometriosis is going to happen. This is a uterus, this is a fallopian tube, and this is a ovary. Okay. Now suppose if the ectopic endometrial tissue or gland deposited here, okay, they undergo hormonal changes at every beginning of the cycle. Now what happens? They also shed blood during every cycle. From here blood will not come out, so they remain encysted here, and finally forming the encysted mass. Due to this mass, there is a constant irritation, leads to the severe adhesion in the abdomen. Then how the endometriosis patient present to you? The common age group we found endometriosis are age group 30 to 45, but it is not a strict criteria. I have seen severe endometriosis in 20 years old girl also. So there is no such strict criteria of the age, but it's a very common between the age group of 30 to 45. Patient have a 70% patient will present with a dysmenorrhea prior to menstruation, and it will be of severe variety, because they all that glands undergo hormonal changes. So patient have such a type of dysmenorrhea that it may not be relieved with the help of NSAIDs. Then patient 20% can present as a menorrhagia. They may have a menorrhagia, regular cycle, but bleeding amount and duration is more. In 40 to 60% of the endometriosis, they will present as a infertility. The one thing we have to remember that in endometriosis, tubes may not be blocked. Due to PID, tubal block you can find it out by the doing HSG. आप HSG कराओगे तो ट्यूबल ब्लॉक देखने को मिलेगा ड्यू टू PID adhesion and tubal block. But in most cases of the endometriosis, the tubes were remains open, but their ciliary function. What is ciliary function? This is uterus, this is fallopian tube, and this is ovary. There is a ciliary movement in the fallopian tube which helps to travel eggs. यहाँ से एग जब रिलीज हुआ ओव्यूलेशन होके, तो दैट एग विल ट्रैवल बाय दिस सिलियरी मूवमेंट टू रीच अप टू यूट्रस.
for fertilization. But normally, due to endometriosis, what happens? If there is a endometriosis, what happens? They make the fallopian tube cilia straight like this. So, tubes may be open, but ciliary function is not active. So, they are unable to transfer egg from the ovary to the uterus. So, in most of the endometriosis, they leads to the infertility. As we discussed in a previous slide, this can also leads to the adhesion. So there may be the frozen pelvis. इतना एडेशन हो जाता है कि पूरा एब्डोमेन फ्रोज हो जाता है. So when you do the laparoscopy or laparotomy, you cannot see the even single organ separately, and everything is like a traffic jam. There is a frozen pelvis. So patient is not able to conceive. So most of the clinical presentation of endometriosis are dysmenorrhea, which is not even relieved with use of NSAIDs, along with infertility. Diagnosis. Ultrasound is the best criteria of endometriosis. So when you see ultrasound report for endometriosis, they will not straightforward, because अल्ट्रासाउंड में ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि उससे आप बोल सको कि हाँ इसको एंडोमेट्रियोसिस है. इवन कोई सिंगल ब्लड मार्कर भी नहीं है कि वो देख के आप बता सको कि हाँ ये एलिवेटेड है. दूसरे में तो क्या है कि देख के बता सकते हैं, पर इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसको देख के बोलो कि हाँ आपको एंडोमेट्रियोसिस है. बट sometimes due to encysted collection of blood for a long time in the ovary, they will convert into mass and they form collection of that blood leads to the mass, and they are termed as a chocolate cyst, because बहुत लंबे समय से वहां पे blood collected हुआ है, collect होता गया, then it will form a like a mass. So it is called chocolate cyst. So sometimes in the ultrasound they will written as a 3 by 3 by 2 centimeter encysted mass seen in the ovary, suggestive of chocolate cyst. Or they may can written as right ovary shows 4 by 4 centimeter mass having a ground glass appearance. What is ground glass appearance? Suppose this is a cyst. This is a cyst. There are different types of cysts are available. वो भी मैं अभी आप सबको वो सिखा देती हूँ इसके साथ. You see so many, if you see reports, there are so many different types of cysts they are writing. So let me clear. One is this is a cyst, this is a cyst, this is a cyst. So one is called follicular cyst. What is follicular cyst or corpus luteal cyst? फॉलिकल रप्चर हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो अपने आप छोटा हो जाता है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट कॉर्पस ल्यूटियम मे नॉट गोइंग टू रिग्रेस, और ओव्यूलेशन भी नहीं हुआ है और वो फॉलिकल बढ़ता गया लंबा होता गया. Then it convert into cyst. Cyst यानी fluid containing mass.
सो जो फॉलिक्यूलर या कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है वो जनरली लेस देन 5 सेंटीमीटर होती है पहले तो, एंड दे कंटेन क्लियर फ्लूइड, मीन्स उसमें क्लियर फ्लूइड होगा। ऐसे आप सोनोग्राफी में देखोगे तो ऐसे ब्लैक जैसा लगेगा, क्लियर फ्लूइड। It will like this. It shows clear fluid. Okay. So this is a follicular cyst. फिर एक जो आती है वो हेमरेजिक सिस्ट। तो समटाइम्स आजू बाजू की जो कैपिलरीज रप्चर होती है तो हेमरेजिक सिस्ट बनती है, तो उसमें ये फॉलिकल है, सिस्ट बनी, तो उसमें फिर ब्लड सेप्टा होगा, ऐसा वो दिखेगी। दिस इज हेमरेजिक सिस्ट। तो फॉलिकुलर और हेमरेजिक सिस्ट आर मेनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, और वे 5 सेंटीमीटर से बिलो है। इफ दे आर लेस देन 5 सेंटीमीटर इन साइज, nothing surgical treatment is required. Keep in mind this. If it is less than 5 centimeter, though this is not in your course, but अल्ट्रासाउंड में ये आपको बहुत देखने को मिलता है। सो आई हैड कवरिंग दिस। सो उसकी कोई स्लाइड नहीं है, बट यू कैन कीप इन योर माइंड। सो फॉलिकुलर सिस्ट एंड हेमरेजिक सिस्ट आर मोस्टली लेस देन 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। दे विल रिजॉल्व बाय देयर ओन सेल्फ। बट कई बार 1 या 2 महीना आप वेट करते हो, रिजॉल्व नहीं होता है, या पेशेंट को ट्रीटमेंट लेनी है, तो इन सच केस यू कैन गिव oral contraceptive pill, that is tablet overall L or tablet Novelon, which contains ethinyl estradiol 0.03 milligram plus डिजोजेस्ट्रॉल। सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन वाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 3 और डे 5। फर्स्ट 5 डेज में कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। 21 दिन के लिए देने का, स्टॉप करने का, मेंसेस आ गया फिर अगेन स्टार्ट करने का, ऐसी 3 साइकिल्स। सो 90% ऑफ द सिस्ट विल डिसअपियर विद दिस ट्रीटमेंट। So it is clear regarding follicular and hemorrhagic cyst. Now we will move to the endometriotic chocolate cyst, मैंने बोला। So उसमें भी ऐसा फ्लूइड का कलर तो ब्लैक ही होगा, बट there will be like this। जो वो एक रेती वाला आता है, पता है, मिनट के लिए 1 मिनट में ऊपर से नीचे चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ऐसा ऐसा दिखने को मिलेगा। दिस इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। सो दिस इज चॉकलेट सिस्ट। सो आपको एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलती है। वो जब चॉकलेट सिस्ट बनती है, दैट मीन्स कि उसने एंडोमेट्रियम, उसने पूरा एंडोमेट्रियम को खराब किया, फेलोपियन ट्यूब्स को खराब किया, और फिर वो चॉकलेट सिस्ट बनाती है। लेप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आप लेप्रोस्कोप करके देखते हो तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, या इट्स अ एंडोमेट्रियोसिस। सो ऑलवेज लेप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। नाउ कम्स टू द ट्रीटमेंट पार्ट। सबको पहले पता चला हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, हाउ प्रेजेंट पेशेंट कम्स टू यू, देन आई विल मूव फॉर द ट्रीटमेंट।
Everyone clear regarding endometriosis? हाँ बोलिए. नहीं, ओवरी में होती है चॉकलेट सिस्ट. दूसरी जो जगह होती है ना, वहां पे उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट. अगर मैं लेप्रोस्कोपी करती हूँ तो ओवरी में पूरा मांस होके जो बनता है उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं. बट अदर जगह पे जो दिखता है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट. अगर आप किसी का लेप्रोस्कोपी का रिपोर्ट देखते हो तो उसमें लिखते हैं वो लोग कि देयर आर मल्टीपल एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स सीन इन द पाउच ऑफ डगलास. There are endometriotic spots seen on the fallopian tubes. There are endometriotic spots seen on the uterosacral ligament. So उसको endometriotic spots बोलते हैं. और ओवरी में जब पूरा ब्लड धीरे धीरे हर महीने पे कलेक्ट होके मास बनता है उसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं. उसको क्यों ऐसा बोलते हैं कि जब हम सर्जरी के दरमियान वो रप्चर करते हैं तो उसमें से जो ओल्ड कलेक्टेड ब्लड होता है वो प्योर डार्क चॉकलेट जैसा होता है. चॉकलेट सॉस आता है ना, सिरप, ऐसा उसमें से निकलता है. सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट. क्लियर? ओके. Anyone has questions regarding up to this, or we will move for the treatment part? So ट्रीटमेंट में पहले तो माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस. पहली बात कि एंडोमेट्रियोसिस ऐसी चीज है ना कि वो कभी भी अच्छा नहीं होगी. अच्छा यानी कि आपने कुछ मेडिसिन दिया और वो समय से चली गई, आप ऐसा नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज जो सिस्ट का डिपोजिशन हुआ होता है वो नेचुरल होता है. तो आप एंडोमेट्रियोसिस कभी भी आप क्योर नहीं कर सकते हो. लाइक अ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो होता है वो कभी क्योर नहीं कर सकते हो. ऐसे एंडोमेट्रियोसिस का भी कोई क्योर नहीं है. ओनली यू कैन ट्रीट द सिम्टम्स और you can reduce the symptoms severity, or you can carry out what your aim. So उसकी कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है. माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस अगर है, माइल्ड यानी पेशेंट को मोस्टली दे विल प्रेजेंट टू यू एज ए डिस्मेनोरिया. सो टू रिलीव द डिस्मेनोरिया, टेबलेट आइब्यूप्रोफेन 400 मिलीग्राम 1 BD और tablet mefenamic acid 500 milligram 1 TDS or naproxen 250 milligram 1 TDS you can prescribe. These all are NSAIDs. Oral contraceptive pill also suppress the endometriosis because if you give the estrogen progesterone combination, they will not going to happen the ovulation. अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हो तो उसका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा. तो जो स्पॉट्स है वो सारे इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे. तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन कम होगा. तीसरा एलएनजी आईयूसीडी, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल वाली जो मीरेना बोलते हैं, मैंने समझाया था, दैट इज ऑल्सो यूज्ड हु हैड कंप्लीटेड देयर चाइल्ड बियरिंग एज. So it reduced the dysmenorrhea and menorrhagia. न्यूअर ड्रग में अभी एक डाइनोजेस्ट आई है, दैट इज द प्रोजेस्ट्रॉन. डाइनोजेस्ट 2 मिलीग्राम डेली फॉर पेन रिलीफ. पर ये डाइनोजेस्ट है वो अच्छी है बट इट्स अ क्वाइट कॉस्टली ड्रग. एज वेल एज अगर सेम लाइक अ प्रोजेस्ट्रॉन है तो अगर पेशेंट ये लेता है तो और उसको बच्चा चाहिए, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चाहिए, प्रेगनेंसी भी रुकनी है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी बिकॉज यू आर गिविंग प्रोजेस्ट्रॉन.
If patient is planning for conception, progesterone only given after ovulatory. So Dynogest is most commonly used to relieve the pain, but it is commonly used those who don't want a pregnancy and they have severe pain not relieved by any method. So in that case, Dynogest will going to work. GnRH analog, what is that? उसको बोलते हैं GnRH agonist, गोनेडोट्रोफिन एगोनिस्ट, जो FSH और LH को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और सप्रेस भी कर सकते हैं. सो वो को अगर आप देते हो तो वो कॉजिंग शूडो उफरेक्टोमी, शूडो यानी फॉल्स और उफरेक्टोमी मीन्स ओवरीज का रिमूव करना. तो विदाउट सर्जरी आप ओवरीज रिमूव कर देते हो बाय गिविंग दिस. GnRH एगोनिस्ट अगर आप शॉर्ट टर्म ओनली 3 days के लिए देते हो तो इट गिव राइज टू द फ्लेयर इफेक्ट. फ्लेयर यानी वो FSH LH को उत्साहेगा, एक्टिवेट करेगा. बट आप लंबे समय तक देते हो तो वो पूरे हार्मोन को नील कर देगा. सो ऑल हार्मोन्स विल गो इनटू द इनएक्टिव स्टेज. तो वो जो इंजेक्शन आता है डेपो यानी लॉन्ग इंजेक्शन, इट इज कॉल्ड इंजेक्शन ल्यूप्राइड डेपो 3.75 मिलीग्राम IM मंथली, महीने में एक ही बार देने का 6 महीने तक. सो इंजेक्शन ल्यूप्राइड डेपो 3.75 मिलीग्राम IM मंथली फॉर 6 months. सो अगर किसी को बहुत पेन हो रहा है, कुछ नहीं करना है, मेडिसिन नहीं लेनी है, तो दिस इज महीने में एक बार ले लेने का, 6 महीने तक पेन विल रिलीव और उसकी इफेक्ट आगे फिर 4-5 महीने तक रुकेगी, फिर से अगेन दूसरा आपको देना पड़ेगा. सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कब करेंगे? व्हेन स्मॉल एंडोमेट्रियोमा मोर देन 3 सेंटीमीटर. पहले तो 3 सेंटीमीटर से बिलो चॉकलेट सिस्ट है, कुछ भी है तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे. मोर देन 3 सेंटीमीटर ऑफ एंडोमेट्रियोमा, एंडोमेट्रियोमा यानी मैंने बोला कि फ्लूइड चॉकलेट सिस्ट बोलो, एंडोमेट्रियोमा बोलो, ऑल आर सेम थिंग. सो एंडोमेट्रियोमा का हम सिस्ट एस्पिरेशन करेंगे इफ साइज इज मोर देन 3 सेंटीमीटर. लार्ज एंडोमेट्रियोमा है, मोर देन 4 सेंटीमीटर है, तो सिस्टेक्टोमी, पूरी सिस्ट को रिमूव मीन्स ऐसे ओपन करना पड़ेगा. और अगर इनफर्टिलिटी है तो जहां जहां भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट है उसको फलग्रेट करते हैं. फलग्रेट यानी एक उसको उड़ा देते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फलग्रेशन करना. सो इनफर्टिलिटी में वी विल डू endometriotic spot fulguration. So this is about the surgical part. Now adenomyosis, same, it is not a different thing. हाँ बोलिए. हाँ नहीं देंगे, बिकॉज इसमें से कोई भी मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हो. बिकॉज प्रेगनेंसी अगर पेशेंट को रखनी है तो आप क्या दोगे? यू कांट गिव ओसीपिल, यू कांट गिव LNG-IUCD, यू कांट गिव प्रोजेस्ट्रॉन, यू कांट गिव GnRH एनालॉग, कुछ भी आप नहीं दे सकते हो. तो अगर पेशेंट कंसीव करना चाहता है एंडोमेट्रियोसिस में तो उसको देखो कि कितना प्रॉब्लम है. अगर चॉकलेट सिस्ट है और वो लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो उसको कुछ नहीं करना है, आप पेन किलर दो और साथ में आपको इनफर्टिलिटी के मेडिसिन देनी पड़ेगी जिससे उसके एग प्रोडक्शन अच्छे हो. अगर पेशेंट का मोर देन 3 सेंटीमीटर का चॉकलेट सिस्ट है
तो उसको बोलना पड़ेगा कि पहले आप सर्जिकली इसको रिमूव कराओ या उसको एस्पिरेट कराओ, वरना इतना बड़ा एंडोमेट्रियोमा ओवरी में होगा और आप कितनी भी पेशेंट नेचुरली ट्राई करेगा या आप कितनी भी इनफर्टिलिटी के मेडिसिन दोगे, पेशेंट विल नॉट गोइंग टू कंसीव। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर से बिलो है तो उसमें हम वेट कर सकते हैं, बट मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंडोमेट्रियोमा इज मस्ट। फॉलिकुलर और हेमरेजिक सिस्ट में मैंने बोला कि उसमें 5 सेंटीमीटर क्लियर कट फ्लूइड की सिस्ट है तो उसका कुछ नहीं करना है, 5 सेंटीमीटर तक हमें कुछ नहीं करेंगे। पर इसमें 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड टू रिमूव द सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। अगर इफ हैविंग अगर अगर अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो आप क्या करेंगे। तो पहले तो सिवियर एंडोमेट्रियोसिस आप कैसे डायग्नोस करोगे, मैंने बोला कि कोई रिपोर्ट से तो आप डायग्नोस नहीं कर सकते हो। तो अगर पेशेंट को सिवियर डिस्मेनोरिया है, आपकी ट्रीटमेंट से अच्छा नहीं हो रहा है, आपने कितना भी करके देखा, तो फर्स्ट लेप्रोस्कोपी इज द मस्ट क्राइटेरिया। ठीक है। और लेप्रोस्कोपी में अगर वो दिखता है कि सिवियर चॉकलेट सिस्ट है, ट्यूब्स भी इतना वर्क अच्छे, मैंने बोला ना कि आप HSG कराओगे इनफर्टिलिटी में तो ट्यूब्स ओपन होगी बट एक्चुअली एग वो ट्रांसफ़र नहीं करती होगी। तो अगर वो डायग्नोस होता है कि बहुत बड़ा चॉकलेट सिस्ट है, बहुत एंडोमेट्रियोसिस, लेप्रोस्कोपी में तो दिख जाएगा। अगर सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, मॉडरेट टू सिवियर मैं तो बोलूँगी, only mild cases infertility are treated with help of medication, ovulation induction drug से क्लियर हो जाएंगे। बट इफ देर इज अ चॉकलेट सिस्ट, 3 सेंटीमीटर से बड़ा एंडोमेट्रियोमा हो गया है या बहुत सारे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स आपको दिखते हैं लेप्रोस्कोपी में, देन ऐसे केसेस में IVF इज द ट्रीटमेंट। ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को IVF इवन करना है तो हम क्या करते हैं कि ल्यूप्राइड डेपो, जो मैंने आपको बताया ना, ल्यूप्राइड डेपो GnRH एगोनिस्ट, तो ल्यूप्राइड डेपो हम देंगे महीने में एक बार, ऐसे 3 साइकिल्स तक देंगे। तो उससे जितने भी उसके एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हार्मोन की वजह से एक्टिवेट थी ना, वो सब इनएक्टिव स्टेज में चली जाएंगी। और लास्ट इंजेक्शन दिया उसके 1.5 महीने बाद आई विल स्टार्ट माई IVF साइकिल। फिर हम उसकी टेस्ट ट्यूब बेबी की साइकिल स्टार्ट करेंगे, देन शी विल बी गोइंग टू कंसीव। अगर डायरेक्टली कर दिया तो भी पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज इतने सारे ग्लैंड्स एक्टिवेटेड है तो वो बच्चे को वहां पे रहने ही नहीं देंगे।
उसको सब टॉक्सिन उसमें से रिलीज होगा और मिस डिलीवरी हो जाएगी। तो पहले उन सबको शांत करना पड़ेगा और फिर आई विल स्टार्ट माई टेस्ट ट्यूब बेबी साइकिल, IVF साइकिल। सो ओनली अप टू माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस यू कैन ट्रीट एट योर क्लिनिक लेवल। उससे ज़्यादा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज मस्ट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसे केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबी IUI और टेस्ट ट्यूब बेबी जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट गोइंग टू कंसीव। क्लियर? ओके मैम, क्लियर मैम। Okay. So adenomyosis is same as endometriosis because it is a subtype of endometriosis. Endometrial glands when travels to the myometrium, it is called adenomyosis. आपने कई सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखा होगा यूट्रस इज बल्की शोइंग एडिनोमायोटिक चेंजेस। आपने अगर देखा होगा तो देखो लिखा होगा। और एडिनोमायोटिक्स मीन्स यूट्रस बल्की यानी मैंने बोला कि नॉर्मल साइज इज 6/5/4। अगर वो उससे ज़्यादा आपको मिलता है 70/60/50 तो माइल्ड बल्कीनेस, फिर उससे ज़्यादा होता है तो बड़ा बल्कीनेस एंड दे विल राइट एज ए। हाँ, दूसरा एक बताना था कि USG में वो लोग लिखेंगे देर इज अ मिक्स्ड इकोजेनिक हिट्रोजिनस इको स्ट्रक्चर। मिक्स्ड, नॉर्मली यूट्रस का जो टेक्सचर होता है मायोमेट्रियम का वो होमोजीनस होता है, लाइक होमोजीनस। पर अगर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स वहाँ पे होगी तो उससे देर विल बी द मिक्स्ड स्ट्रक्चर, सो दे विल राइट एज ए heterogeneous structure suggestive of adenomyosis. So अल्ट्रासाउंड में ऐसा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो एडिनोमायोसिस लिखा है तो भी इट इज अ सब टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सो पेशेंट विल प्रेजेंट एज अ मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया एंड द इनफर्टिलिटी। अल्ट्रासाउंड में हिट्रोजिनस इको एंड इंक्रीज्ड वास्कुलरिटी। ट्रीटमेंट एडिनोमायोसिस एक बार पेशेंट को हो गया, बल्कि यूट्रस हो गया, वी कांट डू नथिंग बट ट्रीट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी है तो मैंने बोला कि ल्यूप्राइड डेपो देके उसे शांत करेंगे, फिर आई विल इमीडिएटली स्टार्ट IUI और IVF ट्रीटमेंट, ART ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अगर पेशेंट को पेन बहुत हो रहा है तो आई विल एडवाइज द पेन किलर। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत हो रहा है तो आई विल एडवाइज टू पुट LNG IUD, Mirena is also work good in adenomyosis because definitely it relieves it in a small dose daily, it secretes the progesterone। और अगर पेशेंट को कुछ नहीं करना है और पेन रिलीफ करना है तो डाइनोजेस्ट। सो उसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, मैंने बोला ऐसा। LNG IUS एंड द सर्जरी इज द ट्रीटमेंट। ये सारे देखो, दिस इज अ ल्यूप्राइड डेपो इंजेक्शन, ल्यूप्रोलाइड एसीटेट, ल्यूप्राइड डेपो 3.75 मिलीग्राम। इट इज वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। महीने में एक बार देना होता है, IM देना होता है। दिस इज डाइनोजेस्ट टैबलेट फॉर पेन रिलीफ। इट इज़ नॉट NSAIDs। आप डाइक्लोफेनाक ब्रूफेन जो देते हो वो नहीं है। इट इज़ अ स्पेशली मेड फॉर पेन रिलीफ फॉर एंडोमेट्रियोसिस बट इट्स अ क्वाइट कॉस्टली ड्रग। दिस इज Mirena। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है लाइक IUCD, ये जो दिखता है यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा है कि उसमें से डेली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है, तो पेशेंट को मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी और इट विल वर्क फॉर 5 years। और जैसे IUCD रखते हैं ऐसे ही रखनी होती है। तो अगर आपको IUCD इंसर्ट करना आता है तो यू कैन पुट Mirena बाय योर सेल्फ ऑल्सो। दिस इज नेप्रोक्सेन टेबलेट 250 milligram फॉर पेन रिलीफ। This is mefenamic acid 250 or 500 milligram 1 TDS. This is oral contraceptive pills
which contains ethinyl estradiol and levonorgestrel. इथिनाइल इस्ट्राडियोल है वो इस्ट्रोजन है और लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल है वो प्रोजेस्ट्रॉन है. So these are the basic medications that used in endometriosis. ठीक है. मैम इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे, मतलब सेम एज एंडोमेट्रियोस? हाँ, एडिनोमायोसिस में देखिए कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो क्या होगा कि एक डीबल्किंग सर्जरी आती है. डीबल्किंग यानी जो एडिनोमायोसिस कैसी चीज़ है ना कि सपोज फाइब्रोड है, हाँ वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, पर देखिए लाइक कैसा होगा ना, देर इज ऑलवेज डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन फाइब्रोड एंड एडिनोमायोसिस. सो फाइब्रोड ये यूट्रस है, अगर फाइब्रोड होगा तो वो टिपिकल उसका ऐसे कैप्सूल होगा, टिपिकल ऐसा दिखेगा. ठीक है. तो फाइब्रोड में हम मायोमेक्टोमी करके उसको रिमूव कर देते हैं. सपोज ये मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ से निकाल दूंगी उसको. बट एडिनोमायोसिस में तो क्या होगा, ऐसे होगा. चला जाता है ऐसे ऐसे पूरा फैला हुआ होगा ये से. तो इसको तो आप कैसे निकालोगे? तो कई बार जब इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट होते हैं तो उसमें कई लोग डीबल्किंग सर्जरी करते हैं. डीबल्किंग यानी थोड़ा पोर्शन ऐसा यूट्रस का काट देते हैं. बट नॉट वाइडली एक्सेप्टेड दिस ट्रीटमेंट. सो हिस्टेरेक्टोमी इज द आंसर. एडिनोमायोसिस है तो हिस्टेरेक्टोमी इज ओनली द आंसर. अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करानी है तो हिस्टेरेक्टोमी, दूसरा कुछ नहीं कर सकते इसमें. और एंडोमेट्रियोसिस में मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी है तो हम फल्ग्रेशन करेंगे. चॉकलेट सिस्ट है तो हेलो, हाँ चॉकलेट सिस्ट है तो लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो कुछ नहीं करेंगे. मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो हम सिस्ट एस्पिरेशन करेंगे. मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो पूरी सिस्ट को निकाल देंगे. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. दूसरे किसी को कुछ डाउट या कुछ भी? ये चीज़ें आपको बहुत ऐसी लगेगी बट प्रैक्टिस में आप अगर आप स्पेशली गाइनिक प्रैक्टिस या ये सब करते हो ना तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आएगा तो उस टाइम पे आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट विल टू डू. सो दैट्स व्हाई आई हैड कीप दिस आर स्पेशलाइज्ड. उसमें बहुत अंदर डीप होता है बट आई हैड कीप अ वेरी सिंपल. इतना तो आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर डूइंग गाइनिक प्रैक्टिस. सो ऐसा भी मगज में होता है ना कि हाँ इसको हम ये कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड एट अ जनरल प्रैक्टिशनर लेवल. ओके मैम हाँ बोलिए. एक बार मैम जैसे आपने फाइब्रॉइड और पॉलिप पढ़ाया, फिर एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस पढ़ाया, तो मैम ज़्यादातर उसमें मतलब मेंसेस से रिलेटेड ही ज़्यादा प्रॉब्लम, डिस्मेनोरिया हो रहा है या मेनोरेजिया हो रहा है, फर्टिलिटी हो रहा है, तब तीनों अगर तीनों के केस आए तो वैसे कैसे साइन सिम्टम्स या किस बेस पे मैम डिफरेंशिएट करते हो? वैसे तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, हाँ बिकॉज हाँ अल्ट्रासाउंड इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. बिकॉज साइन सिम्टम्स तो सब में सेम रहेगा. सब में डिस्मेनोरिया होगा, सब में मेनोरेजिया होगा, सब में इनफर्टिलिटी होगी. तो आपको कुछ डायग्नोस्टिक टूल तो चाहिए. तो अल्ट्रासाउंड इज दी सिंपल मोस्ट रिपोर्ट कि आप उसको डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ ये है. पर अगर सपोज आज पेशेंट आपके पास आया तो आप फर्स्ट विजिट में तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराओगे ना, आपको कुछ ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी. तो आप पहले पेन किलर, मैंने बोला कि सेफेस्ट पेन किलर इन गाइनिक आर नेप्रोक्सेन एंड मेफेनेमिक एसिड. ये दोनों आपको पहले तो पता होनी चाहिए. ठीक है. फिर दूसरा आप सिम्टम्स देखो. अगर ब्लीडिंग है तो मैंने जो हमने दूसरा लेक्चर लिया हैवी ब्लीडिंग, मेनोरेजिया है तो सिंपल फाइब्रोड है, एंडोमेट्रियोसिस है, वॉट एवर है, आप सिंपल नॉरहेथिस्टिरोन एसीटेट, प्रीमोल्यूटेन या रेजिस्ट्रॉन 5 मिलीग्राम 1 BD फॉर 25 डेज के लिए दे दो. पेशेंट को कोई हार्म नहीं होगा.
बट ओनली व्हेन यू प्रिस्क्राइब एनी हार्मोनल मेडिकेशन, आपको बहुत पेशेंट को समझाना है, इट शुड बी टेकन बाय ऑन अलार्म क्लॉक टाइम। सिंपल आप ओवरऑल एल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर 3 साइकिल्स के लिए दे सकते हो। फिर मीनवाइल पे आप सेकंड या थर्ड विजिट में आप अल्ट्रासाउंड करा के फिर आप डायग्नोस करो कि वेदर इट इज फाइब्रोड है, वेदर क्या है। बिकॉज विदाउट डायग्नोस्टिक टूल आपको रूल आउट तो करना पड़ेगा कि ये क्या है, देन यू कैन गिव द ट्रीटमेंट। पर फर्स्ट विजिट में तो मैंने बोला यू गिव द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बिकॉज दे विल प्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है मैम? हाँ बोलिए। मैम अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट में मैम मोस्ट कॉमनली क्या मिलेगा तीनों में, मतलब जैसे वैसे एज ए? वो सिंपल ही देखो, फाइब्रोड, हाँ फाइब्रोड है ना, तो उसमें वो लिखेंगे कि इन यूट्रस देयर इज अ 5/4/3 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर इकोइक एरिया सीन इन द इंट्राम्यूरल पोर्शन ऑफ यूट्रस सजेस्टिव ऑफ फाइब्रोड यूट्रस। वो सिंपल ऐसा लिखेंगे उसमें। सो और कमेंट्स में भी लिखेंगे फाइब्रोड यूट्रस। एंडोमेट्रियो, हाँ बोलिए। इकोइक एरिया लिखेंगे मैम? हाँ, हाइपोइकोइक एरिया। हाइपोइकोइक, हाइपोइकोइक एरिया सीन सजेस्टिव ऑफ फाइब्रोड। एडिनोमायोसिस, और एडिनोमायोसिस में वो पक्का लिखेंगे कि हिट्रोजिनस मिक्स्ड स्ट्रक्चर इन मायोमेट्रियम बल्कि यूट्रस सजेस्टिव ऑफ एडिनोमायोटिक यूट्रस। बट एंडोमेट्रियोसिस में वो लोग नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ओनली दे विल राइट इफ देयर इज अ चॉकलेट सिस्ट। सो एंडोमेट्रियोसिस को आप क्लिनिकली इतना जज नहीं कर सकते हैं। ओनली जजमेंट क्राइटेरिया फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज डिसमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी आर मेन 2 क्राइटेरियाज फॉर एंडोमेट्रियोसिस। और उसको फिर कंफर्म कराने के लिए लेप्रोस्कोपी रिक्वायर्ड है। बाय अल्ट्रासाउंड यू कांट पिक आउट एंडोमेट्रियोसिस, इट विल बी पिक आउट ओनली व्हेन चॉकलेट सिस्ट विल डेवलप। सो चॉकलेट सिस्ट का मैंने बताया कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द सिस्ट दैट सजेस्ट द एंडोमेट्रियोसिस। और फॉलिकल, सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट होगा तो वो लिखेंगे 4/4 सेंटीमीटर सिंपल सिस्ट सीन इन द राइट ओवरी सजेस्टिव ऑफ सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट और सिंपल कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। तो उसमें 5 सेंटीमीटर से कम है तो कुछ नहीं करना है, मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी है। इवन सपोज आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है फॉलिकुलर सिस्ट के लिए तो सिंपली गिव 3 साइकिल्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके मैम, आई थिंक आई हैड क्लियर योर डाउट्स। दूसरे किसी को क्वेश्चन? ओके, तो टुमारोज टॉपिक इज प्रोलेप्स एंड प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस। तो कल हम प्रोलेप्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल।